Good morning, everyone. Students, today we will discuss theme 11 Rebels and the Raj, the revolt of 1857 from class 12th history in detail. I sent you a video of this chapter in which I discuss this a brief introduction of this chapter with you. But today we will discuss in detail that what was the revolt of 1857, how it began and how it spread, and finally what is the role of the rebels and against the Raj means against the Britishers. So students, the Indian Rebellion of 1857, it was a major but ultimately unsuccessful uprising in India in 1857 and 58 against the British colonies or the British government, because the Britishers, they came into India as a trading company, but when they saw disintegration here, they took the advantage of the situation and finally they start ruling on us. So जो ये रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, it was totally against the exploitation of the Britishers, and student, it began from the Meerut on 10th of May 1857, and on the very next day, it means on 11th of May, finally the Sipahis, they reached the Red Fort and convinced, or I can say the requested, Bahadur Shah Jafar, who was the last Mughal emperor, to join the revolt and to let the mutiny. It means उन्होंने request की कि वो head बन जाए इस revolt के. And in the beginning, Bahadur Shah Zafar was not sure about it, but finally he joined and he led the mutiny. And student, it is also known as Sipahi Mutiny, the Indian Mutiny, and the First War of Independence. Now, student, what were the reasons behind this revolt? There are several reasons. There is political, social, administrative causes, and the military causes. If I'm talking about the political causes, I told you about the doctrine of lapse in the online class. What was doctrine of lapse? Lord Dalhousie finally he announced that if any empire has a natural heir, then the property will be given to the natural heir. But अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी प्रिंसली स्टेट का या कोई भी रीजन में अगर नेचुरल हेयर नहीं है, कोई भी अडॉप्टेड है, तो उनकी सारी के सारा जो एम्पायर है वो ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा? ब्रिटिशर्स को. एंड रानी लक्ष्मीबाई जो थे, उनका शी हैड अ अडॉप्टेड सन, तो वो इसके अगेंस्ट लड़े थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के. दिस इज़ द पॉलिटिकल कोज. देन इसके बाद इमीडिएट कोज इनफील्ड राइफल्स के बारे में था. अ रूमर हैड स्प्रेड दैट द न्यू कैटरेज टू बी लोडेड इन द इनफील्ड राइफल वॉज ग्रीज विद द फैट एंड काउ ऑफ पिग, ऑफ काउ एंड पिग. एंड स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आपको पता है दैट हिंदूज, फॉर हिंदू काउ वॉज अ सीक्रेट, एंड फॉर द मुस्लिम pig meat was forbidden by the Quran. And student, it hurts the emotion, the religious sentiments of the people. Then economic cause, the British had drained India of all her wealth and natural resources by selfish economic policies. They came here, they pressurized the peasants to grow indigo and the cotton and the other commercial crop. तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो है वो भी डाउन हो रही थी. देन मिलिट्री कोजेस, इमेंस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस. स्टूडेंट, आई थिंक ये इनिशियल स्टेज पे था जब जो आर्मी थी उसमें बहुत सारे जो है इंडियंस भी काम करते थे. ज़्यादातर इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स कम थे. ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास जो थे इंडियंस थे और ब्रिटिशर्स सिर्फ 50,000 थे और बचे. उसके बाद क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंसीज थी, 3 प्रेसिडेंसीज वर देयर. द फर्स्ट वन वाज बॉम्बे, देन बंगाल एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी. हम इन्हें 3 मेन सेंटर्स भी बोल सकते हैं. और बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या था, मेनली राजपूत्स को लिया जाता था, भूमियार्स को लिया जाता था. दे बिलोंग्स टू हाई कास्ट. एज कॉन्ट्ररी, in Bombay presidency and in Madras presidency there were the lower caste people. it means जो आर्मी में लोग थे वो लोअर कास्ट से थे. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो थे इंडियंस को इंडियंस के अगेंस्ट ही कर रहे थे थ्रू द डोमिनेशन, क्योंकि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वहाँ राजपूत्स की या वहाँ पे जो हायर ब्राह्मण्स थे उनकी जो है डोमिनेशन स्टार्ट हो गई थी. ये जो इनफील्ड राइफल्स का मैंने आपको एक केस बताया था यहाँ पे, इमीडिएट केस, वो भी शायद
शायद एक रूमर था, और वो कहाँ से स्प्रेड हुआ था अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो मिलिट्री से रिलेटेड था, किसी एक आर्मी के पर्सन से ही रिलेटेड था। देन सोशल कोर्स क्या था बच्चे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे। सती अबॉलिश हुई, देन थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन आया, एजुकेशन आई, स्कूल कॉलेजेस, इंग्लिश स्कूल कॉलेजेस आए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था, बिकॉज दैट टाइम इंडियंस वर नैरो माइंडेड, और आई कैन से दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस. So these were the causes of revolt of 1857. Then leaders, as I have discussed with you, the main leaders were Rani Lakshmibai, Mangal Pandey, Bahadur Shah Jafar, Kunwar Singh, Tatya Tope. Then here you can see Mangal Pandey, Maulvi Liaquat Ali. Then बच्चे यहाँ पे जो है एक आपको थोड़ा सा छोटा सा एक क्विज दिया हुआ है. झांसी, कानपुर, इनफिल्ड, राजा ऑफ जोधपुर एंड बहादुर. झांसी belongs to Rani Lakshmibai, then Kanpur, Nana Sahib, Enfield Rifles, Raja of Jodhpur didn't join the revolt, and Bahadur Jafar, as a result of revolt, he exiled to Rangoon. Then student, the most important here from the exam point of view, map के pointer से, the centers of 1857 revolt and the leaders, Delhi, Kanpur, Lucknow, Bareilly, Bihar, Faizabad and Jhansi. Then bache, the outcome, the revolt was completely suppressed and crushed by July 1858, and Bahadur Jafar surrendered to the British. Causes and the failure of revolt में मैं ये कह सकती हूँ कि जो uprising था वो I think it had been planned for the month, but it broke before the due date, and the Gurkhas, they helped the British to suppress the revolt. Even our rebels, they didn't have the weapons also like the Britishers had. So these are the causes and the failure of the revolt. Now student, come to the main topic as per your book, that how this mutiny began. It means what happened in 1857 revolt. The Sipahi began their action with the signal in many places. It was firing of the evening gun or the sounding of the bugle. बच्चे, फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन मीन्स या तो गन की एक बंदूक से फायरिंग होती थी, उससे जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट होता था. एक सिग्नल के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, और साउंडिंग ऑफ द बुगल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या तो वो बजता था, तब जो है 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उसके साथ. देन दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स. बेल ऑफ आर्म्स मीन्स स्टोर रूम जहाँ पे वेपन्स रखे जाते थे, एंड प्लंडर द treasury. They attacked the government buildings, the jail, the treasury, telegraph office, record room, bungalows, and burning all the records. When ordinary people, they begin joining the revolt, the target of attack widened. अभी तक जो थे वो सारे के सारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, जो 1857 के रिवोल्ट को रन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द लीडर्स और जो उनके सेंटर्स थे वहाँ पे. लेकिन बच्चे, अब ऑर्डिनरी लोग, मतलब जो आम जनता है, वो भी जुड़ने लगे रिवोल्ट से. और जैसे जैसे वो जुड़ने लगे, 1857 के साथ रीजन्स भी जुड़ने लगे. जैसे रानी लक्ष्मीबाई का रीज़न क्या था, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट लड़ रही थी. सिमिलरली तात्या टोपे, अवध जो था वो अपने एनेक्सेशन पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहा था. तो जब छोटे छोटे लोग भी, आम जनता भी इसके साथ जुड़े, जैसे कि पीजेंट, तो वो जमींदार के अगेंस्ट, वो लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है इस रिवोल्ट से जुड़े. इन मेजर टाउन्स लाइक लखनऊ, बरेली, अवध, मनी लेंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ रेबल वॉर. इट मीन्स कहीं ना कहीं जो मेजर टाउन्स थे वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो थे, मनी लेंडर्स जो थे, जो रिच पर्सन्स थे, उनको भी जो है एक ब्रिटिशर्स की तरह ही देखा गया कि दे आर ऑल्सो आवर एनिमीज. पीजेंट नॉट ओनली सो देम एज अ ऑप्रेसर बट ऑल्सो एन अलाइज ऑफ द ब्रिटिशर्स. उन्होंने कहा ये ब्रिटिशर्स के फ्रेंड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स की तरह ही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हमसे इतना लैंड रेवेन्यू सिस्टम चार्ज कर रहे हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर इवन मैंने आपको बताया था जोतदार्स के बारे में और ज़मींदार्स के में, कि उनके ऊपर भी प्रेशर था कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट के अंडर. Then in most of the places their houses were looted and destroyed.
The mutiny in the Sipahi rank quickly became a rebellion, and in the month of May and June, the British had no answer to the action of the rebels. अभी तक बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी 1857 रिवोल्ट में. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स गवर्नमेंट बिल्डिंग डिस्ट्रॉय की गई. देन ट्रेजरी लूटा गया, जेल डिस्ट्रॉय की गई. इसके बाद जो जो रिच फार्मर्स थे या जो मनी लेंडर्स थे उनके हाउसेस को भी लूटा गया. लेकिन इन द मंथ ऑफ मे एंड जून द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शन ऑफ रेबल. जून तक अभी तक ब्रिटिशर ने इसको सप्रेस नहीं किया. सप्रेस का मतलब है कोई एक्शन नहीं लिया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. देन स्टूडेंट, रूमर्स एंड प्रोफेसीज. रूमर्स होती है अफवाहें. इट मे बी ट्रू और इट मे बी नॉट. एंड प्रोफेस का मतलब होता है एक प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा, जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो भविष्यवाणी भी बोल सकती हूँ. और बच्चे 1857 का टाइम या 1858 का टाइम ऐसा था जब बहुत सारे रूमर्स आए. रूमर्स थे, ट्रू नहीं था, लेकिन फिर भी रूमर्स आए और कुछ प्रोफेसिस भी की गई, मतलब भविष्यवाणियाँ भी की गई इंडिया को लेकर कि ये जो इंडिया है ट्रूली इंडिपेंडेंट इस टाइम पे होगा या इस टाइम पे होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. The Sipahi who had arrived in Delhi from Meerut had told Bahadur Shah Jafar about the bullets, and bullets were coated with the fat of cow and pigs, and that biting those bullets, it would corrupt their caste and religion. Student, I discussed with you the whole immediate course of Enfield rifles with you कि जो Enfield rifles थी वो उससे रिगार्डिंग एक रूमर आया कि उसमें राइफल लोड करने से पहले जो उसका कैट्रिज है, उसकी जो लेयर है, उसको मुंह से बाइट करना पड़ता है. और वो जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है? काऊ एंड पिग की. सो द न्यूज़ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर अक्रॉस द सिपाही लाइन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जैसे जंगल में एक आग फैलती है ना, वैसे ही ये न्यूज़ जो है, ये रूमर जो है, ये भी फैला. एंड कैप्टन राइट रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 1857 अ लो कास्ट खालसी who worked in a magazine in Dum had asked a ब्राह्मण सिपाही for drink of water from his lota. और बच्चे यहाँ ये रूमर फैला कैसे था, ये कहाँ एक ब्राह्मण सिपाही थे, ठीक है, उनसे पूछा गया. किसने पूछा? खालसी ने, जो कि एक मैगज़ीन के लिए काम करते थे, लेकिन वो लो कास्ट के थे, मतलब एक एससी थे. उन्होंने बोला उस ब्राह्मण सिपाही को कि आप मेरे लोटे में से, लोटा का मतलब है ये कह लो अ काइंड ऑफ मग, ठीक है, लोटा एक हिंदी वर्ड है. तो बच्चे उन्होंने कहा कि आप मेरे मग में से, आप मेरे लोटे में से पानी ले लो. लेकिन वो ब्राह्मण था. ब्राह्मण मतलब वो अपर कास्ट का था. वो कैसे लोअर कास्ट के जो मग है उससे पानी पी सकता था? सो द सिपाही हैड रिफ्यूज सेइंग दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा. इसका मतलब है अगर मैं उसके हाथ से भी पानी पी लूँगा तो जो है वो इम्प्योर हो जाएगा. द खालसी हैज़ रिपोर्टली रिटॉर्टेड दैट you will soon lose your caste, as how long you will have to bite the cartridges covered with the fat of cow and pig. और उस जो लोअर कास्ट के पर्सन को इतना गुस्सा आया कि उसने क्या कह दिया कि जो तुम कह रहे हो ना कि ये डिफाइल हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, तो तुम भी तो क्या कर रहे हो, तुम भी तो काऊ और पिग को यूज़ कर रहे हो. तो ये रूमर वहाँ से निकला, फर्स्ट रूमर. Then the British government had hatched a gigantic conspiracy to destroy the caste and religion of Hindu and Muslim. एक बच्चे और रूमर निकला कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, काऊ की जो हड्डी है या जो पिग की है, उनका जो एक कह लो डस्ट है वो फ्लोर में मिक्स कर दिया है, वो आटे में मिक्स कर दिया है. सो द पीपल दे रिफ्यूज टू टच आटा. देन द ब्रिटिश वुड एंड अ सेंचुरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी. ये बच्चे ये हमारी है प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी हुई कि 23 जून 1857, 23 जून 1857 तक आते आते क्या हो जाएगा, इंडिया में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा. और उस टाइम पे बच्चे बहुत सारे रूमर्स फैलते थे. जैसे एक चपाती का रूमर्स आपकी बुक में गिवन है एग्जाम्पल कि हुआ क्या था, एक पर्सन ने एक चपाती बनाई और उसने आगे किसी को पास कर दी किसी विलेज में, ये कह के कि आपको 5 चपातीस बनानी है इसकी, और फिर जब आप आगे पास करोगे किसी और विलेज में तो उससे भी ऐसे ही आपको 5 चपातीस बनानी है. और बच्चे इस जो रूमर का
कोई अभी तक कोई मतलब ये क्यों हुआ या क्या रीज़न था इस रूमर के लिए या ये क्यों हुआ, ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया, बस वो होता था उस टाइम पे। देन पैनिक स्प्रेड फास्ट एंड चपातीस रूमर, ये मैंने आपको बता दिया। अब बच्चे ये जितने भी रूमर्स की मैं बात कर रही हूँ, इनफील्ड राइफल्स की बात कर रही हूँ या काउ एंड पिग बोन डस्ट की बात कर रही हूँ दैट मिक्सड इन द फ्लोर, वाई पीपल दे बिलीव्ड इन द रूमर्स। फर्स्टली मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं लोग जो थे नैरो माइंडेड अनएजुकेटेड थे, और सबसे मेन रोल प्ले करते हैं चेंजेस, रिफॉर्मिंग पॉलिसी। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज लेकर आना, एंड दैट टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स he introduced his reforming policy under which the English medium schools, colleges, universities were established, in which the new subjects came like science, art। तो ये जब सब्जेक्ट्स आने लगे, जब बिल्कुल इंडिया में चेंजेस होने लगे, इवन यहाँ की एजुकेशन में चेंजेस हुए, इसके साथ साथ सती प्रथा अबॉलिश की गई है। जितने भी सती प्रथा, आपको पता है ना, व्हेन हस्बैंड डाइड एंड वाइफ विल बी ऑल्सो डाइड विद हिम। तो बच्चे ये जो है सारा का सारा इंडिया में जो बैकवर्डनेस थी वो विलियम बेंटिक के आने के बाद क्या हुई, उनकी रिफॉर्मिंग पॉलिसी के आने के बाद ख़त्म हुई। स्पेशली वेस्टर्नाइजेशन आया, कल्चर बदला हमारा, थोड़ा सा कल्चर चेंज होने लगा। एजुकेशन जो थी, पहले हिंदी मीडियम स्कूल चल रहे थे, अब उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की, उनका सिलेबस चेंज किया गया। सो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की रिफॉर्मिंग पॉलिसी भी शायद एक रीज़न है कि रूमर्स पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेते थे लोग, क्योंकि लोग डरे हुए थे, वो चेंज नहीं चाहते थे, वो ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी समझते थे। इवन जो ब्रिटिशर अगर कुछ अच्छा भी कर रहे थे तब भी उनके अगेंस्ट थे। फियर एंड एप्रीहेंशंस, बच्चे फियर का मतलब है उनके माइंड में कहीं ना कहीं था ये डर कि ये जो चेंजेस हैं कहीं हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय ना कर दे, कहीं हमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कम ना कर दे। देन स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज अवध इन रिवोल्ट, और आई कैन से द रिवोल्ट इन अवध। As we know, Awadh, it is in UP, and student, it is the heart of Indo-Gangetic Plain. And बच्चे that time Awadh was famous for the soil fertility. Even today, alluvial soil के लिए बहुत फेमस है अवध का जो रीजन है। और बच्चे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अवध को कॉन्कर किया था इन 1857, एनेक्स कर लिया था। फर्स्ट लाइन मैंने आपको दी है, चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। ब्रिटिशर्स ने बच्चे यहाँ 2 टायर पॉलिसी रखी थी, और अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, वो उसे हम खा के रहेंगे, मतलब हमारे मुंह में जाएगी ही जाएगी। वो अवध को चेरी कह रहे हैं यहाँ पे। इन 1851 लॉर्ड डलहौजी he described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into the mouth one day, and finally in 1856 he annexed Awadh. And बच्चे the reason was the subsidiary alliance had been imposed on Awadh in 1801। सब्सिडरी अलाइंस क्या था, मैंने आपको बताया था। सब्सिडरी अलाइंस के अंडर जो ब्रिटिशर्स हैं दे गिव ऑफर टू द ऑल द प्रिंसली स्टेट्स कि आप जो हैं अपनी जितनी भी सीमाएं हैं, टेरिटरीज हैं, वो हमें देंगे, और इसके बदले में वो जो हम हैं वहाँ पे एक सुपरवाइज़र, एक मिलिट्री अपॉइंट करेंगे, और अगर किसी ने बाहर से अटैक कर दिया तो वो मिलिट्री क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं बच्चे, बाय द टर्म ऑफ दिस अलायंस द नवाब हैड टू डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स एंड अलाउ द ब्रिटिशर टू पोजीशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम। अपनी मिलिट्री छोड़कर बाहर की मिलिट्री आएगी तो बच्चे हमारी, मतलब प्रिंसली स्टेट्स जो किंग थे उनकी वैल्यू तो कम होगी। Deprived of his armed force, the Nawab became increasingly dependent on the British to maintain law and order with the kingdom। कहीं ना कहीं जब आर्म फोर्सेस नहीं होंगी तो वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, उनका जो कंट्रोल है एज अ चीफ और तालुकदार पे वो भी कम होगा। एंड द सॉइल ऑफ अवध रीजन वॉज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। सबसे पहले बचे सब्सिडरी अलायंस के लिए जो प्रिंसली स्टेट्स के किंग थे वो क्यों राजी नहीं थे, स्पेशली अवध में, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो पावर है वो कम हो जाएगी। देन स्टूडेंट, मैंने आपको बताया अवध जो है दैट टाइम वॉज फेमस फॉर इंडिगो एंड कॉटन and located to develop into the principal market of Upper India।
Then after this, after the annexation of Awadh, the Marathas land, the Doab and the Punjab had been conquered. Then student, uh, यहीं तक टॉपिक ख़त्म करते हैं. ये जो नेक्स्ट 2 स्लाइड्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी स्टूडेंट्स, आपको बताऊंगी कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. इसका मतलब है जो वाजिद अली शाह थे, वहाँ के जो नवाब थे, कैसे उनको डिथ्रोन किया गया, हटाया गया, और उनकी याद में गाने गाए गए. और द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे एक कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने लिखा था कि वो इतना डिजर्विंग थे, लेकिन जब उनके जाने के बाद जो है लाइफ लाइफ नहीं रही है, लाइफ लेस हो गई है. एंड देन एक फोक सॉन्ग आया था, द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री. द रिमूवल ऑफ नवाब लेड टू डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट एंड इट कल्चर. और उसकी पूरी की पूरी जो कोर्ट है वो डिसॉल्व कर दी गई थी. और बच्चे इस डिसोल्यूशन के बाद जितने भी म्यूजिशियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, ऑफिशियल डांसर, दे लूज देयर लाइवलीहुड. अगर स्टूडेंट ये समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी. द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. थैंक यू स्टूडेंट्स.